ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا، ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا، بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ شارق لیبارٹری سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ شارق بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نولکھے نے روٹی کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ گلباز نے کیوں بلایا تھا؟ شارق بولا، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ رات کو ہم نے جن آدمیوں کو ٹھکانے لگایا تھا ان میں گلباز کا ایک قابل اعتماد ساتھی بھی ہے، اور اسے یقین ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مزید یہ کہ انہیں جھاڑیوں میں چھپائی ہوئی رائفلیں بھی مل گئی ہیں، جس سے معاملہ کچھ اور الجھ گیا ہے۔ سمینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بولی، کیا مطلب؟ شارق مسکرایا، بولا، مطلب گڑبڑ۔ پھر تفصیل سے انہیں سب کچھ بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، گلباز خان کو ہم پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا ہے، لیکن وہ اس وقت تک کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جب تک اس شبے کی تصدیق نہ ہو جائے۔ نولکھا اس کے خاموش ہونے پر بولا، اب ہوگا کیا؟ شارق نے کہا، ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ کل گلباز خان نے ہمیں اپنے ساتھ ملانے کی بات کی تھی اور میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ کا رخ کسی حد تک بدل جائے، لیکن اب ہمیں محتاط رہ کر اس کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ شاہ پری نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے کچھ اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری ساری محنت رائے گاں گئی۔ شارق نے کہا، ہماری محنت رائے گاں نہیں جائے گی، آج کا دن گزرنے دو، میں گلباز خان کے قریب رہ کر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ نولکھے نے کہا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ شارق نے پوچھا، وہ کیا؟ نولکھا بولا، گلباز نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنا ایجنٹ بنا کر حاجی سے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کل میں وہ ہمیں یہاں سے چلتا کر دے اور ہمیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ شارق نے کہا، گلباز خان اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو۔ وہ ہمیں یہاں سے اس وقت تک نہیں جانے دے گا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ ہم اسے دھوکہ نہیں دیں گے، اور اس دوران اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ اس کے آدمی فرار نہیں ہوئے بلکہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے تو معاملہ ختم سمجھو۔ نولکھے نے کہا، بلکہ اپنا ہی خاتمہ سمجھو۔ محمد عمر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک آدمی چائے کی کیتلی اور پیالیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے موضوع تبدیل کر دیا۔ چائے کی کیتلی اور پیالیاں نیچے رکھتے ہوئے اس شخص کی نظر شاہ پری کی طرف اٹھ گئی۔ شاہ پری سامنے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی پھٹی ہوئی قمیض نظر آ رہی تھی۔ اس نے قمیض کو اگرچہ گرا لگا رکھی تھی، لیکن شاہ پری نے اس کی نظروں کو محسوس کر لیا اور وہ پہلو بدل کر بیٹھ گئی۔ وہ شخص کیتلی رکھ کر باہر چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر محمد عمر اور شارق اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سمینا بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ نولکھا اور شاہ پری کمرے میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ دن گزرتا رہا اور شارق وغیرہ کی بے چینی بڑھتی رہی۔ اس نے گلباز کو دن میں 2-3 مرتبہ جھاڑیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ تو وہ جھاڑیوں میں چلتا ہوا کنویں تک بھی آیا تھا۔ کنویں تک جھاڑیاں دبی ہوئی تھیں۔ شارق سوچ رہا تھا کہ اگر گلباز خان کو شبہ ہو گیا تو وہ کنواں بھی کھنگال ڈالے گا۔ کنواں اگرچہ بہت گہرا تھا، لیکن شارق جانتا تھا کہ گلباز جیسے شخص سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ رسے لٹکا کر خود کنویں میں اتر جائے گا یا کسی اور کو اتار دے گا۔ رات کے کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد گلباز خان نے ایک بار پھر شارق کو بلا لیا۔ وہ اس وقت لیبارٹری کی عمارت کے برآمدے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھا ہوا تھا۔ شارق اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، کیا ہوا گلباز خان؟ کچھ پتہ چلا تمہارے آدمی کہاں گئے؟ گلباز خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن میں نے تم لوگوں کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ شارق کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بولا، کیسا فیصلہ؟ گلباز نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے حاجی کے معاملے پر تم سے بات کی تھی؟ شارق بولا، ہاں مجھے یاد ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ گلباز بولا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ کل صبح روانہ ہو جاؤ۔ میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا جو تم لوگوں کو بحفاظت سرحد پار کروا دے گا۔ اس کے بعد تمہیں لاہور پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ حاجی سے معاملہ طے ہوتے ہی تم لاہور میں موجود میرے آدمی کو مطلع کر دو گے، وہ فیصلہ کر لے گا۔ وہ میرا قابل اعتماد ساتھی ہے، تم اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہو۔ شارق بولا، ٹھیک ہے، اپنی وہ شرائط بتا دو جن کے مطابق حاجی سے معاملہ طے کیا جائے گا۔ گلباز خان نے کہا، شرائط کوئی ایسی نہیں ہیں جو حاجی کے لیے قابل قبول نہ ہوں۔ پھر وہ اپنی شرائط بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، کمی بیشی تم اپنی ثوابدید کے مطابق کر سکتے ہو۔ شارق نے پوچھا، اس میں میرا حصہ کیا ہوگا؟ گلباز نے مسکراتے ہوئے کہا، 10%۔ تمہیں صرف لاہور میں رہ کر نگرانی کرنی ہوگی،
10% के हिसाब से भी तुम्हें बैठे बिठाए लाखों का कैश मिल सकता है। शारिक बोला, मुझे मंजूर है। हम किस वक्त जाएंगे? वो बोला, सुबह नाश्ता करते ही रवाना हो जाओ। लेकिन शारिक बोला, लेकिन क्या? गुलबाज ने कहा, तुम्हारे 2 साथी यहीं रहेंगे। समीना और नौलखा जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हम हर तरह से उनका ख्याल रखेंगे। लाहौर में अपने आदमी की तरफ से क्लियरेंस मिलते ही समीना और नौलखे को बाहिफाजत सरहद पार पहुंचा दिया जाएगा। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसका ख्याल दुरुस्त निकला था। गुलबाज वाकई उतना बेवकूफ़ नहीं था जितना उसे समझ लिया था। वो समीना और नौलखे को उस जमानत के तौर पर अपने पास रखना चाहता था। इसका मतलब था कि उसे उन पर मुकम्मल भरोसा नहीं था। शारिक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे साथियों को मेरी अदम मौजूदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गुलबाज खान ने कहा, मुतमईन रहो, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शारिक जब कमरे में वापस पहुंचा तो उसके चेहरे से परेशानी जाहिर थी। नौलखा वगैरह चौंके बगैर न रह सके। नौलखा बोला, क्या बात है शारिक बाबू, खैर तो है ना, कोई गड़बड़ हो गई है? शारिक ने कहा, गुलबाज ने सुबह हमें जाने की इजाजत दे दी है। वो बोला, लेकिन उसका लहजा बुझा बुझा सा था। नौलखा बोला, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस जहन्नम से खैर आफियत से निकल जाएंगे। शारिक बोला, तुम्हें याद होगा कि गुलबाज ने मुझसे बात की थी कि मैं लाहौर में हाजी से उसका मामला तय करा दूं। नौलखे ने कहा, हाँ मुझे याद है। शारिक ने कहा, उसने कहा है कि हम सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएं। उसका एक आदमी हमारे साथ जाएगा जो हमें सरहद पार करवा देगा। लेकिन नौलखे ने पूछा, लेकिन क्या? इस लेकिन के बाद ही मुझे कोई गड़बड़ महसूस होती है। शारिक बोला, लेकिन उसने हमें इस शर्त पर यहाँ से जाने की इजाजत दी है कि मैं तुम्हें और समीना को यहीं छोड़ जाऊं जमानत के तौर पर। नौलखे के मुंह से गहरा सांस निकला। ओह, उसका दिमाग खराब हो गया है। एक लड़की को यहाँ क्यों छोड़ा जा सकता है? मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। जाओ अभी और इसी वक्त जाकर कह दो कि मैं तुम लोगों की जमानत बनकर यहाँ रहूंगा। वो चाहे जिंदगी भर मुझे यहाँ रख ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन समीना को यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। नौलखे ने खामोश होकर समीना की तरफ देखा। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। शाहपरी ने कहा, समीना की बजाय मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। नौलखा बोला, यह भी नहीं हो सकता। क्या हम इतने बेगैरत हैं कि अपनी आज़ादी के लिए अपनी औरतों को गिरवी रख दें? यह कभी नहीं हो सकता। या तो हम सब जाएंगे या सब यहीं रहेंगे। ये हो सकता है कि मैं यहाँ रह जाऊं। समीना ने उसे घूरा। बोली, क्या वाकई तुमने उस शैतान की ये शर्त मान ली है? क्या वाकई तुम मुझे इन वहशियों के बीच में छोड़कर चले जाओगे? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्त मान लेने और उस पर अमल करने में बड़ा फर्क होता है। सुबह जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो सब साथ होंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। समीना के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। नौलखे ने कहा, लेकिन ये सब कैसे होगा? क्या तुम समझते हो कि ये लोग हमें हमारी मर्जी के मुताबिक यहाँ से जाने देंगे, जबकि हम बिल्कुल निहत्ते हैं और ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? शारिक ने कहा, हमें बस एक राइफल की जरूरत है। हमारी तादाद 5 है और वो 4 हैं, लेकिन हमें अगर एक राइफल मिल जाए तो उन चारों पर काबू पाया जा सकता है। नौलखे ने कहा, यह हमारी बदकिस्मती है कि राइफलें हमारे हाथ आने के बाद भी निकल गईं। शारिक बोला, हमें सिर्फ एक राइफल की जरूरत है और आज रात हम वो राइफल हासिल कर लेंगे और फिर सुबह हम सबको यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। थोड़ी देर के बाद शारिक और समीना उठकर कमरे से बाहर आ गए। दिन या रात के किसी भी हिस्से में उनके घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी। शारिक और समीना उस वक्त घूम फिर कर ये देखना चाहते थे कि गुलबाज और उसके साथी कहाँ कहाँ हैं। वो दोनों लेबोरेटरी के सामने से गुजरते हुए रुक गए। एक गनमैन बरामदे में बैठा हुआ था। शारिक ने पूछा, गुलबाज खान कहाँ है? वो शख्स बोला, तहखाने में है। बुलाऊं या तुम लोग अंदर जाओगे? शारिक बोला, नहीं, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गए। वो लोग एक लंबा चक्कर काटते हुए वापस आ गए। एक आदमी को उन्होंने उस जगह देखा जहां से उन पहाड़ों से बाहर जाने का रास्ता था। ये रास्ता शारिक पहले भी देख चुका था। ये एक तंग सा दर्रा था जिसमें से पहलू बपहलू 2 घोड़े गुजर सकते थे। शारिक ने आगे जाकर ये रास्ता नहीं देखा था, लेकिन गुलबाज खान ने उसे बताया था कि तकरीबन 100 गज आगे जाकर ये रास्ता कुशादा हो जाता है। दूसरी तरफ एक और तंग सा रास्ता था जहां से वो लोग उन्हें लेकर आए थे। एक गनमैन दर्रे वाले रास्ते पर बैठा हुआ था और दूसरा दूसरे रास्ते पर। दीगर इलाके में ऊंची खारदार तारें लगी हुई थी और जाहिर है उनकी हिफाजत के लिए अब कोई नहीं था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग घूम फिर कर वापस आ गए। शारिक ने तय कर लिया कि ये लोग इस रास्ते से वापस जाएंगे जिस रास्ते से उन्हें यहाँ लाया गया था। लेकिन सबसे अहम मसला राइफल का था। राइफल कैसे हासिल की जाए? वो सब लोग यही सोच रहे थे कि राइफल कैसे हासिल की जाए। शाहपरी ने यह तजवीज़ पेश की कि राइफल हासिल करने के लिए वही पुराना तरीका इख्तियार किया जाए, यानी शाहपरी और समीना के जरिए किसी एक मुहाफिज को फांस कर तारीकी में ले जाकर ख़त्म कर दिया जाए और उसकी राइफल पर कब्जा कर लिया जाए।
मोहम्मद उमर के पास एक और तजवीज़ थी, लेकिन वो लोग अभी किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके थे कि बाहर से एक आवाज़ सुनकर चौंक गए। वो सब खामोश होकर आवाज़ सुनने लगे। साफ लग रहा था जैसे कोई लाउड स्पीकर पर कुछ कह रहा हो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। नौलक्खे ने कहा, लाउड स्पीकर पर कोई ऐलान हो रहा है। समीना ने उसे घूरा, बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इन पहाड़ों में लाउड स्पीकर कहाँ से आ गया? रेडियो बज रहा होगा। शारिक ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया, बोला, 1 मिनट, आवाज़ तो वाकई लाउड स्पीकर जैसी है। वो लोग तवज्जो से वो आवाज़ सुनने लगे। उसी लम्हे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसी लम्हे एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस शख्स ने कहा, गुलबाज ने तुम लोगों को बुलाया है, सबको, लेबॉर्ट्री में। वो खासा बदहवास हो रहा था। शारिक ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए हो? वो बोला, तुम लोग जल्दी आ जाओ। ये कहते हुए वो बाहर दौड़ गया। उसके जाते ही वो लोग उठकर कमरे से बाहर आ गए। खुली फजा में आवाज़ साफ आ रही थी। मोहम्मद उमर ठिठक कर रुक गया और आवाज़ सुनने लगा। वो शारिक की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, शारिक भाई, सूरत हाल खतरनाक हो गई है। खान अब्दुल कुद्दूस के आदमियों ने रास्ते को घेर लिया है और खान खुद मेगाफोन पर गुलबाज से मुतालबा कर रहा है कि हम लोगों को उसके हवाले कर दे। शारिक बोला, चलो, गुलबाज खान से मालूम होगा कि किस्सा क्या है। वो तेजी से आगे बढ़ गए। लेबॉर्ट्री के सामने वाली तमाम बत्तियां बुझी हुई थीं, तारीकी फैली हुई थी। वो लोग लेबॉर्ट्री वाले बरामदे में पहुंच गए। वहां एक आदमी खड़ा था जो उन्हें अंदर ले गया। तहखाने का बल्ब जल रहा था और गुलबाज खान बेचैनी से टहल रहा था। शारिक ने जाते ही पूछा, क्या हुआ गुलबाज, ये सब क्या है? गुलबाज खान ने कहा, खान अब्दुल कुद्दूस खान को पता चल गया है कि उसकी लेबॉर्ट्री तुम लोगों ने तबाह की है और ये कि तुम लोग यहाँ मेरे पास मौजूद हो। वो खामोश हुआ, फिर बोला, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन कल उसका एक आदमी यहाँ आया था। उसने मुतालबा किया था कि तुम लोगों को उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अब वो अपने आदमियों को साथ लेकर आ गया है और तुम लोगों की वापसी का मुतालबा कर रहा है। शारिक बोला, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खान को यहाँ हमारी मौजूदगी का पता कैसे चला? गुलबाज खान ने कहा, मेरे 3 आदमी सरोबी गए थे, उन्हीं में से किसी एक ने गद्दारी की होगी। तुमने ठीक कहा था, मेरे आदमियों में चंद गद्दार मौजूद हैं। मुझे पहले भी उन पर शुबा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले ही उनका बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम हमें उनके हवाले कर दोगे? गुलबाज खान ने ठोस लहजे में कहा, कभी नहीं। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत है। खान अब्दुल कुद्दूस के 7-8-10 आदमी जरूर होंगे, जबकि हमारे पास सिर्फ 3 आदमी हैं। हम 4 आदमी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम लोग हमारी मदद करो। शारिक ने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हम खाली हाथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। गुलबाज खान ने एक तरफ इशारा किया, बोला, तुम लोगों की राइफलें वो पड़ी हैं, राइफलें उठाकर मैगजीन चेक कर लो। फाजिल मैगजीन भी करीब ही पेटी में रखे हुए हैं। शारिक बोला, ठीक है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने अपने साथियों को इशारा किया। वो लोग आगे बढ़कर राइफलें उठाकर चेक करने लगे। वो सभी दिल में मुस्कुरा रहे थे। वो सिर्फ एक राइफल हासिल करने का मंसूबा बना रहे थे और कुदरत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उन सबको अपनी तमाम राइफलें मिल गईं और अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई कर सकते थे। राइफलें संभाल कर वो लोग तहखाने से बाहर आ गए। गुलबाज खान भी उनके साथ था। वो बरामदे के सामने रुककर उन्हें बताने लगा कि खान अब्दुल कुद्दूस खान और उसके आदमी किस तरफ हो सकते हैं। वो बोला, मैंने अपने आदमियों को मुनासिब जगहों पर खड़ा कर दिया है। तुम अपने आदमियों को पोजीशन समझा दो। मैं उस तरफ हूँ, उन पत्थरों के पीछे। वहां से आगे जाने वालों को रोका जा सकता है। शारिक ने सामने के रुख का जायजा लिया और अपने साथियों को उनकी पोजीशन के बारे में समझाने लगा। उसने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए अपने साथियों को उस तरफ तैनात किया था जिस तरफ उनके घोड़े भी मौजूद थे। मेगाफोन पर खान अब्दुल कुद्दूस की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, गुलबाज खान, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम इन आदमियों को मेरे हवाले कर दो, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम मुझे अपना बदतरीन दुश्मन पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुमने उन लोगों को मेरे हवाले न किया तो मेरे आदमी फायर शुरू कर देंगे और तुम्हारी लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी जाएगी। चंद ही सेकंड के बाद गिनती शुरू हो गई। उसने अभी 3 ही कहा था कि शारिक ने आवाज की समत फायर कर दिया। तारीकी में इतनी दूर से किसी को निशाना बनाना मुमकिन नहीं था, मगर शारिक ने यह फायर खान अब्दुल कुद्दूस को इश्तियाल दिलाने के लिए किया था, क्योंकि उसके दिल में अचानक ही ये ख्याल आया था कि लेबॉर्ट्री की तबाही की धमकी से गुलबाज खान उनके बारे में अपना इरादा न बदल दे। उसका ये हरबा कामयाब रहा। उसके फायर के जवाब में दूसरी तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। गुलबाज खान ने भी अपने आदमियों को चीख कर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। शारिक दौड़ता हुआ मोहम्मद उमर के पास पहुंच गया। वो सरगोशी में बोला, मोहम्मद उमर, अपने तमाम साथियों को लेकर घोड़ों की तरफ चले जाओ और घोड़े लेकर उस रास्ते से निकलने की कोशिश करो जिस तरफ से ये लोग हमें लेकर आए थे। मोहम्मद उमर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शारिक ने कहा, मैं बस चंद मिनट में तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा।
तुम लोग उसी रास्ते पर पहुंचकर मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो एक तरफ दौड़ता चला गया। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग हो रही थी। शारिक को यकीन था कि गुलबाज खान के आदमी ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेंगे और वो उससे पहले अपना काम खत्म कर लेना चाहता था। गोलियां शारिक के आसपास गिर रही थीं। वो भी फायर करता हुआ लेबोरेटरी के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां गुलबाज खान का एक आदमी मौजूद था जो दर्रे वाले रास्ते की तरफ फायरिंग कर रहा था। शारिक ने चीख कर कहा, गुलबाज खान कहाँ है? उस शख्स ने एक तरफ इशारा किया। वो उस तरफ गया है। शारिक बोला, तुम भी उसकी मदद के लिए उस तरफ निकल जाओ। यहाँ की फिक्र मत करो, मैं मौजूद हूँ। मेरे होते हुए कोई इस तरफ नहीं आ सकता। वो शख्स फायरिंग करता हुआ एक तरफ दौड़ता चला गया। शारिक कुछ देर तक वहीं खड़ा एक पत्थर की आड़ में सामने की तरफ फायरिंग करता रहा। फिर उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। लेबोरेटरी के बरामदे में पहुंचकर वो रुक गया। एक बार फिर उसने इधर उधर देखा और बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ लेबोरेटरी के दरवाजे में घुस गया। तहखाने में पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। वो गुलबाज खान से मुलाकात के लिए 3-4 मरतबा यहाँ आ चुका था और चंद बातें उसने नोट कर ली थी। लेबोरेटरी में एक तरफ केमिकल के चंद ड्रम रखे हुए थे। उसने एक ड्रम का ढकना खोलकर उसे उलट दिया। ड्रम में भरा हुआ केमिकल जमीन पर बहने लगा। शारिक ने 2-3 ड्रम और उल्टा दिए और गैसोलीन का एक डिब्बा उठाकर सीढ़ियों के करीब आ गया और डिब्बा खोलकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया। तमाम सीढ़ियां तेल से तर होने लगी। शारिक ने जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाई और उसे सीढ़ियों पर उछाल दिया। सीढ़ियों पर फैले हुए गैसोलीन ने फौरन ही आग पकड़ ली। आग शारिक की तवक्को से कहीं ज्यादा तेज फैलने लगी। शारिक बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। बरामदे में पहुंचकर वो एक लम्हे को रुका, फिर सामने की तरफ फायर करता हुआ तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। उसे अपने साथियों तक पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। वो लोग घोड़ों की बागें पकड़े तैयार खड़े थे। शारिक चीखा, जल्दी निकलो यहाँ से, यहाँ धमाका होने वाला है। वो लोग घोड़ों पर बैठ गए और घोड़े टीलों के दूसरी तरफ ढलान पर उतरने लगे। फायरिंग बड़ी शिद्दत से हो रही थी। आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि खान अब्दुल कुद्दूस खान का पल्ला भारी था। उसके आदमियों की तादाद ज्यादा थी और वो जदीद तरीन हथियारों से बड़ी जबरदस्त फायरिंग कर रहे थे। इसके बरक्स गुलबाज खान के साथ सिर्फ 3 आदमी थे। शारिक और उसके साथी वहां से तकरीबन 1 मील दूर निकल गए। फायरिंग की आवाजें अब भी आ रही थीं और फिर एक जोरदार धमाका हुआ जैसे कोई आतिशफिशां फट पड़ा हो। उन्होंने मुड़कर देखा। ऊंचे नीचे पहाड़ों की वजह से वो जगह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस तरफ सुर्खी दिखाई दे रही थी और छोटे छोटे धमाकों की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। वो लोग ज्यादा देर वहां नहीं रुके। नौलखे और शापरी का ख्याल था कि कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए, लेकिन शारिक उसके हक में नहीं था। ये जगह उस लेबोरेटरी से ज्यादा दूर नहीं थी और ज्यादा देर यहाँ रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वो लोग रात भर चलते रहे। रात की तारीकी बतदरीज कम होने लगी। वो लोग एक जगह रुक गए। दाएं तरफ नशेब में वसी अरीज वादी थी। दिन की रोशनी अगरचे अभी फैलना शुरू हुई थी, लेकिन इस मलगजे उजाले में भी दूर तक देखा जा सकता था। दफतन समीना चीख उठी, शारिक वो देखो उस तरफ। वो सब उस तरफ देखने लगे। किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां थीं। वो गालिबन कोई भारी ट्रक था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वादी में इंजन की हल्की सी आवाज भी गूंजती हुई सुनाई देने लगी। शारिक ने कहा, शायद उस तरफ कोई सड़क है और हमारा नशेब में उतरना खतरनाक भी साबित हो सकता है। मोहम्मद उमर बोला, इस जगह रुकना भी मुनासिब नहीं होगा। मेरा ख्याल है हमें पहाड़ों के अंदर चले जाना चाहिए। शारिक ने कहा, ठीक कहते हो, चलो तुम आगे। उन्होंने घोड़े मोड़ लिए और एक बार फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। तकरीबन 1 घंटा चलते रहने के बाद वो एक तंग सी सुरंग से गुजरते हुए एक निस्बतन कुशादा जगह पर पहुंच गए। चारों तरफ चट्टानें थीं, जिनके दरमियान तकरीबन 200 मुरब्बा फुट की जगह होगी। उस तरफ आमदरफ्त के लिए वही सुरंग का रास्ता था। उसके अलावा हर तरफ उमूदी चट्टानें थीं। अलबत्ता एक तरफ एक तंग सी दरार थी। वो दरार इस कदर तंग थी कि सिर्फ एक घोड़ा गुजर सकता था। शारिक बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। वो घोड़े से उतरकर उस दरार में दाखिल हो गया। 20-25 फुट के बाद वो दरार दाईं तरफ मुड़ गई थी। उससे आगे एक कुशादा गार थी। उस वक्त दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। शारिक इधर उधर देखता हुआ उस गार में दाखिल हो गया। गार काफी कुशादा थी और तकरीबन 20 गज आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ गई थी। गार का मोड़ घूमते ही शारिक एक झटके से रुक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गार में असलहे के अंबार लगे हुए थे। वो अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा फटी फटी नजरों से असलहे के अंबार को देख रहा था और फिर दफतन जैसे उसे होश आ गया। यहाँ असलहे के अंबार लगे हुए थे, इनकी हिफाजत के लिए भी यकीनन कोई ना कोई मौजूद होगा। ये ख्याल आते ही उसने एकदम राइफल तान ली। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर मोहतात अंदाज में उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। पिछला मोड़ घूमते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वो बड़ी तेजी से घूम गया। उसके साथ ही उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शापरी और मोहम्मद उमर थे। शापरी ने पूछा, क्या बात है?
तुम इस कदर बदहवास क्यों हो और ये राइफल क्यों तान रखी है? शारिक ने होंठ पर उंगली रखी। इस गार में कोई है। शाहपरी और मोहम्मद उमर भी होशियार हो गए। उन्होंने भी अपनी राइफलें सीधी कर ली। वो तीनों सुरंग की दीवार की आड़ में खड़े हो गए। कई मिनट गुजर गए। गार के अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शारिक ने एक पत्थर उठाकर अंदर की तरफ उछाल दिया। पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके जवाब में खामोशी ही रही। शारिक ने दूसरा पत्थर उछाल दिया। इस मर्तबा भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। शाहपरी ने शारिक की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। क्या किस्सा है? तुम्हें किस बात का शुबा है? शारिक ने भी सरगोशी में जवाब दिया। इस गार के अंदर असलहे के अंबार लगे हुए हैं और मुझे यकीन है कि इनकी हिफाजत के लिए भी कोई ना कोई मौजूद होगा। शाहपरी बोली, अगर कोई मौजूद हुआ तो उसे अब तक सामने आ जाना चाहिए था। ये कहते हुए उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर गार के अंदर की तरफ उछाल दिया। इस मर्तबा पत्थर गिरने के बाद कुछ देर तक लुढ़कता चला गया। पत्थर रुकने के बाद खामोशी छा गई। इस मर्तबा भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। शाहपरी ने सरगोशी की, मेरा ख्याल है गार में कोई नहीं है। शारिक ने कहा, मोहम्मद उमर तुम यही रुको, हम दोनों अंदर जाकर देखते हैं। अगर बाहर से किसी को आते देखो तो एक पत्थर उठाकर अंदर फेंक देना। मोहम्मद उमर बोला, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग जाओ। शाहपरी और शारिक राइफलें ताने बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। वो उस जगह पहुंचकर रुक गए जहां लकड़ी की पेटियों का अंबार लगा हुआ था और उसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर और कई मिसाइल रखे हुए थे। उन सबको देखकर शाहपरी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो दोनों पेटियों से आगे निकल गए। आगे एक जगह दीवार के साथ क्लैशनकोफ राइफलों का ढेर लगा हुआ था और कुछ पेटियां भी नीचे ऊपर रखी हुई थी। शारिक की तवज्जो राइफलों वाले ढेर की तरफ थी। शाहपरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दाईं तरफ मुड़ी। उसके साथ ही उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। शारिक तेजी से घूम गया। शाहपरी चीखती हुई उससे लिपट गई। शारिक ने उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश की। बोला, क्या हुआ? शाहपरी ने खौफजदा लहजे में कहा, वो। उसने एक तरफ इशारा किया। शारिक ने उस तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे